Hello, everybody. Welcome back to the Informative World. And today we're going to solve one amazing worksheet based on ratio and proportion, class 7 revision worksheet. All right, so you can see over here. So, some direct questions are given from the chapter. We have to solve them. All right, so let's do it. So, for this, I will have to take a full screen snip first. So, let me do it. Okay, so here are some direct questions from the chapter and I'm going to explain you them. Alright. So direct questions ratio of 60 minutes to 300 minutes. क्या हमें यहाँ कोई changes करना ज़रूरी है? Do we have to make any changes over here? Is it necessary to make any change? No, it is not necessary. Why? क्योंकि both of them are in minutes. यानी unit जो है वो same है. Hence we do not need to make any change. So we can directly find the ratio by cancelling them. By doing them in the simplest form, we can find the ratio. So what will it become? It will become 60 is to 300. That means 60 upon 300. This 1 0 can get cancelled with this 1 0. 2 3 is 6. And 2 15 is 30. Right? Now 3 1s are 3. 5 is 15. So your ratio will be 1 is to 5 as the simplest form is coming as 1 upon 5. So A is the correct option. Mark it as the correct option. Alright people, this is the very next question on your screens. You can see over here. Try solving this yourselves too. If the cost of 16 burgers, उन्होंने 16 burgers का हमें cost दे दिया है. If the cost of 16 burgers is rupees 1280, then the cost of 5 burgers is what? Of course यहाँ unitary method ही हम डालेंगे. उन्होंने डायरेक्टली हमें 16 बर्गर्स का कॉस्ट बता दिया है एज ₹1280 और वो हमसे पूछ रहे हैं 5 बर्गर्स का कॉस्ट कि अगर 16 बर्गर्स का जो कॉस्ट है वो ₹1280 है तो 5 बर्गर्स का कितना कॉस्ट होगा है ना. तो पहले वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बर्गर की वन बर्गर एक बर्गर का क्या दाम है क्या कॉस्ट है. तो फॉर दैट वी विल हैव टू डिवाइड राइट. इसके लिए हमें डिवीजन करना होगा. Let's do it. Okay, so what we are going to do, 1280 divided by 16 हो जाएगा simply. 16 में 16, 8 128. So cost of one burger will be क्या होगा ₹80. समझ गए. अब अगर 5 बर्गर्स का फाइंड करना है अब हमें तो हम क्या करेंगे 5 बर्गर्स के लिए. Simply we are going to multiply 80 cost of one burger with 5, right, which will give you the answer as 400, right. So the correct option is that cost of 5 burgers is ₹400. Understood. You can copy this down, but it was a very easy question. All right. The ratio of 3 kg to 1000 grams. Okay, ratio of 3 kg to 1000 gram. तो 3 kg is to 1000 ग्राम. तो यहाँ क्या कर सकते हो. क्या हम यहाँ रेशियो फाइंड कर सकते हैं. नहीं. क्यों. यूनिट्स डिफरेंट है. केजी है और यहाँ ग्राम है. तो क्या हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं ऐसे हालात में. नहीं. क्यों. यूनिट्स आर डिफरेंट. तो यूनिट्स को सेम करो. या तो केजी दोनों को केजी बना दो या तो दोनों को ग्राम बना दो. वॉट एवर सीम्स ईजियर. राइट. लाइक तुम 1000 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हो और 3000 किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हो. राइट. ग्राम में कन्वर्ट करो या फिर केजी में कन्वर्ट करो. समझ रहे हो बात को. सो वट एवर सीम्स ईजियर टू यू इन वॉट एवर वे. तो what you can do like for example if you want to convert in gram, so this 3 kg will become 3000 gram is to 1000 gram. All right, now we can find the ratio simply by cancelling them. So 3000 upon 1000, so these 3 zeros will get cancelled and your ratio will be 3 is to 1. So this is the correct option, 3 is to 1. समझ गए बात को. ऐसे हमें करना है.
ये आते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे सामने। If Ravi covered 120 meter in 20 seconds, then time required to cover 210 meter is। तो अगर कह रहे हैं कि अगर रवि ने 120 मीटर 20 सेकंड में कवर किए हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ रवि कवर्स 120 meter in 20 seconds, then how much time will Ravi take to cover 210 meter? कितना टाइम लेगा? Yes, 120 meter he is covering in 20 seconds. So how much time will he take to cover 210 meter? वो हमसे यहाँ टाइम पूछ रहे हैं। तो what are you gonna do? According to unitary method, we are going to solve this, right? Of course. So over here, just see. टाइम का पूछ रहे हैं, so 20 seconds. You can see 20 seconds. So 20 upon 120 into 210. This will give you the time. So now these two zeros will get cancelled. 3 4s are 12, 7s are 21, 2 2s are 4, 10s are 20, 2 1s are 2, 5s are 10. And 5 into 7 will finally give you the time, which is 35 seconds. तो अब पता चला कि वो 210 मीटर कितने टाइम में कवर करेगा। सो ही विल कवर 210 मीटर इन 35 सेकेंड्स। समझ गए बात को? ऐसे हमें फाइंड करना रहेगा। अगर टाइम का पूछा गया था इधर तो ऐसे हम टाइम फाइंड करेंगे। If the measures of two supplementary angles are in the ratio 7:8, then the angles are। अब बोल रहे हैं कि दो एंगल्स हैं। Just a second. Let me take a first snip again so that my pen works. Now they are saying there are two supplementary angles। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स बोले तो सप्लीमेंट्री सुन के क्या समझ आता है कि दो ऐसे एंगल्स जो 180 डिग्री को सम अप करें, मतलब जिनका सम 180 डिग्री आए, राइट? ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्रीज आता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब कह रहे हैं कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, यानी सम क्या होगा उन दो एंगल्स का? 180 डिग्री। और उनका रेशियो क्या है? 7:8। दे आर इन द रेशियो 7:8। अब ये फाइंड करो कि वो दो एंगल्स हैं कौन, ठीक है? उन एंगल्स का पता लगाओ, कौन है वो एंगल्स। नॉट अ बिग डील। एनीथिंग वी डोंट नो वी टेक इट एज एक्स, राइट? तो ये 7 हो जाएगा 7x और ये 8 हो जाएगा 8x। सो 7x प्लस 8x कर लो। 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो इनका सम आएगा 180 डिग्री। इस इक्वेशन का मतलब समझ रहे हो? तो वी आर गोइंग टू फॉर्म एन इक्वेशन दैट 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दिस। 15x हो जाएगा ये इज इक्वल टू 180। तो क्या होगा? 15 दिस साइड इट विल बी शिफ्टिंग, राइट? सो 180, जस्ट अ सेकंड, 180 अपॉन 15, 180 अपॉन 15 हो जाएगा। 15 1 ज़ा 15, 1 ज़ा 15, 3 रिमेनिंग, 2 ज़ा 30। तो 12 डिग्रीज। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है? 12 डिग्रीज, ठीक है। अब हम एंगल्स का पता लगा सकते हैं। तो एंगल 7x, अब हमें x की वैल्यू पता है, इट इज 12। सो 7 इंटू 12, 12 7 ज़ा 84। नाउ अब क्या था? 8x, राइट? दैट इज 8x इज नथिंग बट 8 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू है 12। सो 8 इंटू 12, 12 into 8, 8 into 12, right? So what is the product of 8 into 12? It is 96 degrees. तो आपका जो आंसर आएगा that will be 84 degrees and 96 degrees. So A option is the correct option over here. कुछ हॉट्स क्वेश्चन आए हैं इधर से। यहाँ बोल रहे हैं the ratio of number of vertices in a cuboid to the number of vertices in a cone is। तो वो पूछ रहे हैं कि जो क्यूबॉइड में जितने वर्टाइसेस होते हैं, ठीक है, उनका कौन के वर्टाइसेस के साथ क्या रेशियो बनेगा, है ना? उसके लिए हमें वर्टाइसेस का पता लगाना होगा। क्यूबॉइड में होते हैं 8 वर्टाइसेस। नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अ क्यूबॉइड यू आर गोइंग टू राइट
वी ऑलरेडी नो 8, राइट. 8 वर्टाइसेस इन अ क्यूबॉइड. ऑलरेडी हम फेजेस एजेस के साथ साथ हमने वर्टाइसेस भी पढ़े थे, है ना, इन ज्योमेट्रिकल शेप्स के. सो वी ऑलरेडी नो. अब कोन में कितने वर्टाइसेस होते हैं? कोन में वर्टेक्स होता है एक. समझ गए? तो क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए 8:1. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, एंड इट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, बट येस 8:1 इज द ओनली करेक्ट आंसर. ठीक है, वो हमसे वर्टाइसेस का पूछ रहे हैं, तो 8:1 ही करेक्ट आंसर होगा इसका. ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अ क्यूबॉइड टू द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अ कोन. नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अ क्यूबॉइड 8, नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अ कोन ओनली 1, है ना, वर्टेक्स बोलेंगे इस केस में, राइट. तो 8:1. ठीक है, 8:1 रेशियो हो गए. हाँ, करेक्ट ऑप्शन. तो जहाँ भी नहीं है तो ऐड कर लो और वहाँ टिक लगा दो 8:1. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स इन अ स्कोर टू द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ डजन. ये ऑप्शंस दिए गए हैं. तो नंबर ऑफ आइटम्स इन अ स्कोर टू अ डजन, स्कोर टू अ डजन, राइट. सो व्हाट आर यू गोना डू इन दिस केस? स्कोर में कितने आइटम्स होते हैं? 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 आइटम्स. और एक डजन में कितने आइटम्स होते हैं? 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स, राइट. तो क्या हो जाएगा? 20:12. इट विल बी 20/12, राइट. 3 4 are 12. सॉरी, 2 6 are 12. ठीक है, 2 6 are 12, 10 are 20. ठीक है, now 2 3 is 6, 5 are 10. तो आंसर क्या आना चाहिए? 3:5. डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 3:5. समझ गए? ऐसे हम फाइंड करेंगे टू कैंसिल आउट दीज थिंग्स, राइट. कि ये 2 की टेबल में चले जाएंगे. 2 6 are 12, 10 are 20, 3 is 6 एंड 2 5 are 10. तो क्या आएगा आंसर? 3:5 विल बी योर आंसर. तो डी ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है. चलिए आगे बढ़ें दूसरे क्वेश्चन की तरफ. नाउ हियर आर सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं इधर. रेशियो ऑफ 5 वीक्स टू 25 डेज. वीक्स टू डेज नहीं हो सकता, राइट. क्या हो सकता है? या तो डेज टू डेज हो, या तो वीक्स टू वीक्स हो, राइट. लेकिन ये नहीं हो सकता वीक्स इज टू डेज. तो हमें क्या करना होगा? या तो 5 वीक्स को डेज में कन्वर्ट कर दो, या तो 25 डेज को वीक्स में कन्वर्ट कर दो. वट एवर सीम्स ईजियर. सो 1 वीक 7 डेज, सो 5 वीक्स, 5 into 7 35 डेज. सो 35:25, 35/25 हो जाएगा. 5 की टेबल से दोनों चले जाएंगे. 5 5 से 25, 7 से 35. 7:5 शुड कम एज आंसर, विच इज द डी ऑप्शन एंड इट इज द करेक्ट आंसर. वेरी इजी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जगन एंड रवि शेयर ₹720. उन्होंने कितने रुपीज़ का शेयर किया? ₹720 का शेयर किया. लेट मी चूज अनदर पेन because this is very important. Mark this question as an important question because this is extremely important and it may come in your exams. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको हाईलाइट कर लो. आई मस्ट एडवाइज दिस. फिलहाल के लिए हम पेन का यूज करें. Jagan and Ravi share ₹720 in the ratio 7:5 respectively. उन्होंने क्या किया? उनके पास 720 रुपीज़ थे, उनके पास 720 रुपये थे. एंड दे शेयर्ड दिस 720 रुपीज़ इन द रेशियो 7:5 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, यानी 7 किसका हो गया? जगन का. और 5 किसका हो गया? रवि का. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. नाउ देन देयर शेयर इज ₹डैश एंड ₹डैश. फिर उनके शेयर ये हैं. क्या है? नहीं दिए. ये ऑप्शन कोई भी एक ऑप्शन सही हो सकता है. हमें ढूंढना है वो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है. समझ रहे हो बात को?
ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व किए हैं, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील, वी कैन डू इट, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे फाइंड करोगे? जैसे 7:5 दिया गया है, सो ऐड अप द रेशियोज, 7 + 5 = 12, राइट? तो जगन का शेयर, लेट जगन शेयर भी 7/12x, कोई भी अननोन चीज़ को हम x के साथ लेते हैं, एंड लेट रवि शेयर भी 5/12x। अब ये फ्रैक्शंस हैं इधर आपके सामने। देन देयर शेयर इज रुपीज डैश एंड डैश, और देखो टोटल क्वांटिटी कितनी है? 720 रुपीज़ है। तो हमें फ्रैक्शन तो मिल गया, बस हमें टोटल क्वांटिटी का भी पता है, ठीक है? अब तो फ्रैक्शन भी है। ये किसका है? ये जगन का है 7/12x, और ये रवि का है 5/12x। समझ गए? नाउ वी सिंपली हैव टू फाइंड द शेयर। अब कैसे फाइंड करेंगे? 720 रुपीज़ को उन्होंने डिवाइड किया है अमंग देमसेल्स, तो इंडिविजुअली उनको कितना कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू सिंपली मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस बाय 720। समझ रहे हो? 7/12 इंटू 720 हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट? तो क्या है 7/12? क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टोटल क्वांटिटी, राइट? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द टोटल क्वांटिटी। तो बस हमें 720 का इतना पार्ट ढूंढना है और बस हमें मिल जाएगा। सो 12 × 1 = 12, 6 × 72। सो 60 × 7 कीजिए, कितना होगा? इट विल बी 420। तो ये हमें रवि का मिल गया है। रवि का कितना शेयर है? रवि का है शेयर 420। नो सॉरी, इट वॉज जगन शेयर, या ये हमें जगन का शेयर मिल गया। जगन का कितना शेयर? इट इज़ 420। अब हमें रवि का शेयर ढूंढना है, तो सिंपली अगेन द सेम प्रोसेस, हमें उसका फ्रैक्शन पता है, इंटू 5/12 इंटू द टोटल क्वांटिटी विच इज 720। 12 × 12, 6 × 72। 60 × 5 कीजिए। 60 × 5 क्या होता है? 300। तो रवि का क्या शेयर होगा? इट इज 300। तो हेंस वी कंक्लूड दैट जगन्स शेयर इज 420 एंड रवि's शेयर इज 300। ठीक है, जगन का शेयर क्या है? जगन का शेयर है, जगन का शेयर है 420 रुपीज़, 420, और रवि का शेयर है रुपीज़ 300। तो इंडिविजुअली उन्होंने इतना इतना अमाउंट उनको मिला इससे 720 रुपीज़ से। यू कैन ऐड देम अप इफ दे सम अप टू 720 रुपीज़, हेंस वेरीफाइड। राइट? तो जगन शेयर इज 420 एंड रवि शेयर इज रुपीज़ 300। ठीक है, आ गया समझ में हमें इतनी चीज? गुड, इफ यू हैव अंडरस्टूड, राइट? ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। केस स्टडी आ गई है अब। Radhika went to a provision store or a type of grocery, we can say, with her mother. They bought 6 kg sugar, 10 kg rice, 500 gram poha, and 5 kg 500 gram pulses. Now ratio of amount of sugar to the amount of rice. शुगर कितनी है? शुगर कितनी है भाई? 6 kg शुगर है, लाई है वो प्रोविजन स्टोर से। और राइस कितना लाई है? 10 kg राइस, राइट? तो वो तार इन केजी है ना, दोनों चीज़ें केजी में, तो हम इजली रेशियो बिना कुछ कन्वर्जन किए फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो 6/10 हो जाएगा। 2 3 = 6, 5 = 10। तो क्या आएगा आंसर? आंसर विल बी 3:5। ओके,
नेक्स्ट थिंग, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ पोहा टू द अमाउंट ऑफ पल्सेस। पल्सेस का अमाउंट देख लेते हैं। 500 ग्राम पोहा है और पल्सेस 5 kg 500। सो पोहा कितना है? पोहा इज 500 ग्राम और पल्सेस कितनी है? पल्सेस है 5 kg 500 ग्राम। ठीक है, तो इस चीज़ को सुधारो, इसको ग्राम में चेंज कर सकते हैं हम, राइट। सो 5 kg इज 5000 grams, 5000 plus 500, 5500 grams. It will be 500 is to 5500 grams, right? Now we can cancel. Okay, so 1 is to 11 will be the ratio for this. The simplest form of ratio of amount of rice to the amount of pulses. राइस का अमाउंट है, राइस का अमाउंट है कितना है? राइस का अमाउंट है 10 kg। पल्सेस का अमाउंट है कितना? पल्सेस का अमाउंट है 5500 ग्राम्स। कन्वर्जन किया था हमने, राइट। यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू ग्राम्स। 10 kg कैन बी रिटन एज 10,000 grams. So 10,000 amount of rice to the amount of pulses. Yeah. So 10,000 grams is to क्या? 5500 grams. ठीक है, so बस कैंसिल आउट करो। तो ये दोनों चीज़ें जो है 5 के टेबल में आती हैं। 5 2 ज़ा 10, 11 ज़ा 55। सो 20:11 विल बी योर आंसर। उन्होंने रेशियो पूछा था, रेशियो ऑफ कोर्स सिंपलेस्ट फॉर्म ही होता है, तो एक्चुअली वो रेशियो ही पूछ रहे थे। डोंट गेट कंफ्यूज इन सिंपलेस्ट फॉर्म वगैरह वगैरह, दे आर आस्किंग फॉर द रेशियो ओनली। रेशियो इज ऑलवेज गिवन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सो 20:11 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ऑल राइट, नाउ द कॉस्ट ऑफ पल्सेस बॉट एट रुपीज रेट ऑफ ₹90। एक चीज ऐड करना भूल गए हैं, दैट इज पर केजी। 90 पर केजी इज रुपीज क्या? ठीक है, तो 1 kg वो पर केजी यानी हर एक केजी में वो ₹90 चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो पूछे कि पल्सेस का क्या दाम है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पल्सेस। पल्सेस उसने कितनी ली है? उसने पल्सेस ली है 5500 ग्राम में। ठीक है, यू कैन कन्वर्ट दिस इन केजी। हाउ आर यू गोइंग टू कन्वर्ट दिस इन केजी? सिंपली you are going to divide this by 1000. You're going to move 3 places towards the left, right? So 1 2 3 5.5 kg. Now you can multiply this 5.5 into 90 कर दो। Okay, whatever your answer will be your cost of the pulses. All right, so just let's multiply 5.5 into 90 will give you 495 as your answer. You can do it on your own too, right? 495, so 495 will be the cost. Now cost of poha bought at ₹40 per kg is rupees क्या? ठीक है, तो पोहा का क्या पर केजी, पोहा का क्या दाम है पर केजी? इट इज ₹40। पोहा कितना था? 500 ग्राम था। Convert this into kg. It will be 0.5 kg. You can multiply 40, 0.5 into 40, which will give you the answer as 20. Okay, multiplication खुद से करना. So 20 will be your answer for this one. ठीक है, ऐसे you are going to solve. All right. Good for you if you have understood. Thank you. Bye bye. And practice these questions.